لاہور کی شاہپور کانچا مویشی منڈی میں رونقیں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ شہریوں کو خوبصورت اور من پسند جانوروں کی تلاش ہے۔ کسی کو بھاؤ تاؤ کے بعد مرضی کا جانور مل گیا تو کوئی مہنگائی کا شکوہ کرتا نظر آ رہا ہے۔ زین علی کی رپورٹ دیکھیے۔ شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں چھوٹے بڑے موٹے جانور، شہریوں کی بڑی تعداد مویشی منڈی پہنچ گئی۔ کوئی کالا تو کوئی براؤن تو کوئی سفید رنگ کا جانور خریدنے کا شوقین، ہر کسی کو من پسند جانور کی تلاش۔ یوں تو ایک سے بڑھ کر ایک جانور منڈی میں موجود ہے، لیکن پست قد چلبل کی خوبصورتی کے چرچے ہیں۔ ساہیوال نسل کے 3 فٹ کے بچڑے چلبل کو جو بھی دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے، تبھی تو اس کے دام بھی کم نہیں، 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ دودھ پیا تے پالیا اسی، ان دی قیمت 5 لاکھ ہے، نسل ساہیوال ہے، دیسی۔ پیار سے پالا ہوا، دودھ سے پلایا، مکھن کھلایا، بادام کھلایا، لیکن ہم نے پورے محلے کو کھلانا ہے، ٹھیک نا۔ بادام کے ساتھ ہمارا پورا محلہ نہیں کر پائے گا، لیکن ریٹ بہت زیادہ ہے۔ یہ زیادہ پسند آئے جانور اور پاپا نے لینا ہے۔ مویشی منڈی میں کسی کو بھاؤ تاؤ کے بعد مرضی کا جانور مل گیا تو کوئی مہنگائی کا شکوہ کرتا رہا۔ جو جانور ہمیں پسند آتا ہے وہ 4 لاکھ مانگتے ہیں، 4.5 مانگتے ہیں، اس سے کم کی بات نہیں ہے۔ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، کوئی ہر بندہ 4 لاکھ 3 لاکھ، اس سے کم بتا ہی نہیں رہا۔ مہنگائی کی وجہ سے مشکلات تو آڑے آ رہی ہیں، لیکن استطاعت رکھنے والے شہری سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے پرعزم ہیں۔ کیمرہ مین عمیر رئیس کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ قربانی کا جانور سب سے منفرد نظر آنا چاہیے۔ شہریوں نے سجاوٹی سامان کی خریداری کے لیے بازار کا رخ کر لیا۔ کسی نے جانجر خریدی تو کسی کو رنگ برنگی مالا پسند آئی۔ گزشتہ سال کی نسبت قیمتوں میں 40% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ کے جانوروں کی خریداری، اب ان کو سجانے اور سنوارنے کی باری۔ شہریوں نے سجاوٹی سامان خریدنے کے لیے سرکولر روڈ پر قدیمی ساز بازار کا رخ کیا۔ کسی نے جھانجر خریدی تو کسی کو رنگ برنگی مالا پسند آئی۔ آرائشی سامان میں پھولوں سے سجی گارنی اور چمڑے کے پٹے بھی شامل ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ عید قربان سے قبل بازار میں رش بڑھ جاتا ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت قیمتوں میں 40% اضافہ ہوا۔ اس کے باوجود بچے اور بڑے سجاوٹی سامان لینے آتے ہیں۔ عید کا موقع ہے، لوگ بچوں کے ساتھ آتے ہیں، جانور لے کے آتے ہیں، یہاں پہ ان کو سجاتے ہیں۔ گانی، مالا، جھانجر وغیرہ جو بھی ہے ان کے لوازمات ہیں وہ سارے اس کو پورے کر کے بچے لے جاتے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ قربانی کے لیے جانور خرید لیا، اب اس کو مزید خوبصورت بنانے کی تیاری ہے۔ بچوں کی خواہش ہے ہمارا جانور سب سے منفرد نظر آئے۔ بکرا خریدا اور اپنا مالا لینے آئے اور ساتھ جھانجر لینے آیا ہوں، خوبصورت بنا کے انشاءاللہ ذبح کروں گا۔ جانور ہم نے خرید لیا منڈی سے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو سجانے کے لیے جھانجرے وغیرہ، بچے کے مالا۔ قربانی کے جانوروں کے لیے سجاوٹی سامان کی فروخت تو بڑھ گئی، لیکن شہری مہنگائی کا شکوہ بھی کرتے دکھائی دیے۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی، قربانی کے جانور ذبح کرنے کے لیے اوزاروں کی خریداری، چھریوں اور بختوں کی قیمتوں میں بھی ہوشر با اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں کا مہنگائی کا شکوہ، کہتے ہیں قصاب مہنگے ہیں تو چھریاں بھی سستی نہیں رہیں۔ عبدالقادر کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ پہلے قربانی کے جانوروں کی خریداری، پھر ذبح کرنے کی ذمہ داری، چھریوں اور بختوں کی خریداری جاری۔ قربانی کے اوزار بھی مہنگائی کے لپیٹ میں ہیں۔ چھریوں اور بختوں کی قیمتوں میں ہوشر با اضافہ ہو گیا۔ گزشتہ برس کے مقابلے میں چھریوں کی قیمتیں 50 سے 100% تک بڑھ گئی ہیں۔ تکبیر والی چھری 500 روپے سے 1500 روپے تک دستیاب، کھال اتارنے والی چھری 200 سے 500 روپے تک مل رہی ہے۔ گوشت بنانے والی نارمل چھری 300 سے 500 روپے کی ہے۔ اچھی کوالٹی کی چھری 1200 سے 2000 روپے تک بیچی جا رہی ہیں۔ گوشت بنانے والی مڈی 120 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی ہر چیز کو لے کر رہی ہے، اوزار اچھے ہوں گے تو قربانی بھی اچھے طریقے سے کی جا سکے گی۔ قصاب مہنگے ہیں تو چھریاں بھی سستی نہیں۔ اوزار جو ہیں وہ منہ مانگے دام ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ باہر سے چھریاں آ رہی ہیں پاکستان کے باہر سے، دوسرے ملکوں میں سے، وہ بک رہی ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ قیمتیں ہو رہی ہے، اور کسائیوں کی بات کر رہے ہو آپ، کسائی 9000 10,000 روپیہ لے رہے ہیں۔ اتنی مہنگائی ہو رہی ہے کہ کوئی حساب نہیں ہے۔ شہریوں نے نئے اوزار کی خریداری کے ساتھ ساتھ پرانی چھریاں بھی تیز کروانی شروع کر دی ہیں۔ اور وقت کم، مقابلہ سخت، مویشی منڈیوں میں رونقیں عروج پر ہیں۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے من پسند جانوروں کی تلاش جاری۔ شہریوں کی بڑی تعداد مویشی منڈی پہنچ گئی۔ 35 من کا سلطان نامی بھینسا سگیاں منڈی کی زینت بن گیا۔ مالک نے 25 لاکھ روپے دام مانگ لیے۔ منڈی کا احوال جانتے ہیں شہزیب شہزاد سے۔ جی شہزیب بتائیے۔
और जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर की सगिया मंडी में मौजूद हूँ और आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ सुल्तान से, जो कि 34 मन का भैंसा और सगिया मंडी की जीनत बन चुका है। इसका मालिक किसे क्या खिलाता पिलाता रहा है, उसकी तरफ रुख करते हैं, जानते हैं। ये वो सुल्तान है, लेकिन इसका वज़न जो है वो 34 मन बताया जा रहा है और इसकी अब तक 20 लाख रुपया कीमत भी लग चुकी है और इसके मालिक ने इसको फ़रोख्त नहीं किया। जी आप मुझे बताइएगा कि इसको क्या खिलाते पिलाते रहे हैं, कैसे पाला पोसा है, कितनी उम्र का है ये 4.5 साल की उम्र है। मूँहों छिगा है। असी इनू माशाल्लाह बड़े लाड प्यार नाल पालिया है। दुध के हो चने माशाल्लाह इन्हें खुराकां नाल पालिया, देसी खुराकां खादियां इन्होंने। देसी खुराकों से तो पाला है। इसकी कीमत का क्या मुतालबा है आपकी? 5 लाख रुपये ऐसी डिमांड करने पे हैं, जी मिलती नहीं पई। 10 तो 15 लाख तक लगता पाया। 10 से 15 मिल रहा है। 20 लाख रुपया देंगे तो ये दे देंगे आप? नहीं देंगे। 20 लाख रुपए में भी नहीं देंगे। अब तक कितने दिन हो गए इसको लेके यहाँ पे आप खड़े हुए हैं? क्योंकि ईद में तो 1 दिन रह गया। 4 दिन हो गए। नहीं इंशाल्लाह इंतज़ार करेंगे ईद से एंड तक। व्यापारी भी जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, रेट कम करने के लिए तैयार नहीं है। 34 मन का भैंसा है, 25 लाख रुपया मुतालबा किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि 1 दिन भी ईद में रह गया है, लेकिन फिर भी फ़रोख्त नहीं करेंगे। 25 लाख से कम कीमत का नहीं देंगे। 20 लाख रुपया भी रेट लग चुका है, लेकिन व्यापारी अपनी कीमतों से कम नहीं दिखाई दे रहे। आपको मैं सुल्तान के दर्शन भी करवाता हूँ कि सुल्तान दिखता कैसा है। इस वक्त बिल्कुल तेल लगा के इसके मालिक ने इसको मंडी में खड़ा किया हुआ है, जबकि बहुत से लोग जो हैं वो इसकी तरफ आते हैं, देख के आगे चले जाते हैं, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि मालिक को वो कीमत अदा नहीं कर पाते। यकीनी तौर पे महंगाई इतनी ज़्यादा है और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी करनी है, लेकिन जानवर अगर इतना ज़्यादा महंगा फ़रोख्त होगा तो आम शहरी ख़रीदेगा कैसे? उसकी कुव्वत ख़रीद ही इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए जो है वो शहरी ज़्यादातर बर्दाश्त कर रहे हैं यकीन के साथ इस बात पे कि जो चांद रात है उस दौरान रेट सस्ते होंगे मवेशी जानवरों के, फिर वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, निगरान सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद का महकमा लाइफ स्टॉक का दौरा। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मसूद अनवर ने ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ने महकमे की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने पर जोर दिया है। सूबाई वज़ीर इब्राहिम मुराद का कहना था कि लाइफ स्टॉक का सेक्टर मुल्क की मईशत की अहम इकाई है। मवेशी पाल किसानों को खिदमात की फराहमी में कोई कसर उठा ना रखी जाए। ईद उल अज़हा पर महकमे की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। सर्विस डिलीवरी में जद्दत और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना होगा। उनका कहना था कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने किसानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर रखी है। दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफा हमारा फोकस है। अब आपको बताएं कि ईद अपनों के साथ मनाने की ख्वाहिश मुसाफिर लारी अड्डों पर ख्वार होने लगे। टिकट के हुसूल के लिए लंबी कतारें लग गईं। जायद किराया अदायगी करने वालों को फौरी टिकट मिल रहा है, परदेसियों का शिकवा। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने का प्लान। परदेसियों की आबाई इलाकों को रवानगी में तेजी आ गई। लाहौर के लारी अड्डों पर मुसाफिरों का गैर मामूली रश। मर्द, खवातीन और बच्चे सफर के लिए जतन करते दिखाई दिए। मुसाफिरों को टिकट के हुसूल में मुश्किलात का सामना रहा। गर्मी और हब्स में मुसाफिरों की लंबी कतारें। मुसाफिरों ने शिकवा किया कि जायद पैसे देने वालों को टिकट मिल रही है। मुकर्ररा रेट पर टिकट लेने वालों को लाइनों में लगाया जा रहा है। लिया जा रहा था, काफ़ी देर हो गई, मुझे 3 से 4 घंटे हो गए हैं टिकट के हसूल के लिए लाइन में लगे हुए हैं। कुछ सिफारशी हजरात आते हैं, अंदर से टिकट ले जाते हैं, हमें सिर्फ तसल्ली दी जा रही है कि लाइन में लगें। कोई टिकट नहीं मिल रही, ना कोई यहाँ पे कवानीन है, ना कोई असूल है। आगे जो सवारियाँ आती हैं सिफारशी, जिनकी ऑलरेडी कॉल होती है या कोई मैनेजर उनका जानने वाला है, उनको मिल जाती है। बाकी पब्लिक जो है ये आपके सारे सामने लाइन में खड़ी है और लाइन में खड़े होने के बावजूद भी उनको टिकट नहीं मिल रही। किराया तो पूरा ले रहे हैं, बाकी हमें इन्होंने बहुत जलील किया। कोई सिस्टम नहीं है इनका। गर्मी में हमारा ये बुरा हाल हो गया, ना कोई इनके बैठने की जगह, ना खड़े होने की जगह। ईद की तातीलात का आगाज 28 जून से होना है, लेकिन परदेसियों की कोशिश है कि पहली फुर्सत में घर पहुंचकर ईद बेहतर अंदाज में मनाएं। ताहम इसके लिए टिकट और फिर गाड़ी की दस्तयाबी इम्तिहान बन गई। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसी बेताब। परदेसियों की बड़ी तादाद ने अपने आबाई इलाकों का रुख कर लिया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर टिकट के हसूल में मुश्किलात का सामना रहा। फाहद अमीन की रिपोर्ट देखिए।
ईद का मजा तो अपनों के साथ है। परदेसियों की बड़ी तादाद की लाहौर से अपने आबाई इलाकों को रवानगी। शहर के बस अड्डों की तरह रेलवे स्टेशन पर भी इंतहाई रश। कुछ को टिकट मिल गया लेकिन ज्यादातर हुए परेशान। किसी की बुकिंग न हुई तो किसी को ओपन टिकट न मिला। रेलवे स्टेशन पर सहूलियात के फुकदान से मुसाफिर हुए अलहदा परेशान। ट्रेनें नहीं हैं, ट्रेनों में कोई निज़ाम भी से ठीक नहीं है, ना कोई फ़ैन चल रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। बहुत ही हालात ख़राब हैं। सारे अड्डों पे गए हैं, ठीक है, उनके बाद टिकट हमें कहीं से भी नहीं मिली। परदेसियों की परेशानी की खबर रेलवे के आला हुकाम तक पहुंची तो मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। हम लोगों ने ड्यूटीज़ लगा दी हैं। लाहौर, फैसलाबाद हमारे मेजर स्टेशन हैं, तो उसके ऊपर हम लोग चक्कर लगाते रहेंगे, हमारी टीम्स चक्कर लगाती रहेंगी। मुसाफिरों को अगर कोई इशू आता है, कोई रिजर्वेशन से रिलेटेड इशू आता है या कोई भी चीज़ आती है तो उसका हमारी कोशिश होगी कि देर एंड देन वहाँ पे उसको हल किया जाए। रेलवे इंतजामिया की जानिब से ईद पर 3 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं। ताहम ट्रेनों की आमद और रवानगी घंटों ताखीर का शिकार। दूसरी तरफ लेस्को ने ईद के तीनों रोज लोड शेडिंग न करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नौमान कहते हैं कि कैटेगरी 1 और 2 पर लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। ईद उल अजहा के दौरान लेस्को रीजन भर में बिजली की बिलातातुल सप्लाई फराहम करेगा। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नौमान कहते हैं लेस्को की कैटेगरी 1 और 2 मुकम्मल तौर पर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना होगी। ज़्यादा नुकसान वाले फीडर्स की कैटेगरी 3 और 4 पर 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर का कहना है सार्फिन अपने कुर्बानी के जानवर बिजली के खंभों और तारों के साथ ना बांधें। मानसून के पेश नज़र बिजली मुअत्तल होने की सूरत में बिजली की तनसीबात से दूर रहें। वासा ने ईद उल अजहा की मुनासिबत से तैयारियां मुकम्मल कर लीं। ईद के तीनों रोज़ पानी की फराहमी के औकात कार बढ़ा दिए गए। बारिशों के पेश नज़र LWMC को ड्रेनों में अलाइशें फेंकने से भी रोक दिया गया है। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। वासा लाहौर ने ईद उल अजहा के रोज ट्यूबवेल चलाने के औकात कार जारी कर दिए। ईद के पहले रोज पहला दौरानिया सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। दूसरा दौरानिया दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे तक मुश्तमिल। तीसरे दौरानिये में शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक ट्यूबवेल चलाए जाएंगे। ईद के दूसरे रोज पहला दौरानिया सुबह 4 बजे से दोपहर 10 बजे तक होगा। दूसरा दौरानिया दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे, जबकि तीसरा दौरानिया शाम 5 से रात 9 बजे तक होगा। ईद के तीसरे रोज पहला दौरानिया सुबह 5 बजे से दोपहर 9 बजे तक होगा। दूसरा दौरानिया दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक, जबकि तीसरा दौरानिया शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक होगा। MD वासा गुफरान अहमद ने तमाम डायरेक्टर्स को ट्यूबवेल के औकात कार में पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हदायत कर दी। ईद उल अजहा पर ड्रेनों में निकासियाब के अमल को बेहतर बनाने का मंसूबा भी बना लिया गया। वासा ने LWMC और आवाम को ड्रेनों में अलाइशें फेंकने से रोक दिया। वासा इंतजामिया का कहना है कि गुज़िश्ता ईद पर शिकायत मिली कि अलाइशें नालों में फेंकी जा रही हैं। वासा ने O&M डायरेक्टर्स के लिए सीवरेज से मुतालिक SOP जारी कर दिए। डायरेक्टर्स की हदूद में सीवरेज लाइनों पर मेन होल्स की मौजूदगी के NOC मांग लिए गए। ईद उल अजहा के मौके पर LDA का तमाम सरगर्मियां बंद रखने का फैसला। शहर में बारिशी पानी के निकास के लिए स्क्वाड्स मंसूबों पर मौजूद रहेंगे। LDA अफसरान ईद पर 5 छुट्टियां मनाएंगे। महकमे मौसमियात ने ईद उल अजहा के आयाम में बारिशों की पेशगोई कर रखी है। ईद उल फितर पर तो LDA की जानिब से मेगा प्रोजेक्ट पर तामीराती काम जारी रहा था। ताहम ईद उल अजहा की छुट्टियों में शहर के मेगा प्रोजेक्ट पर तामीराती काम नहीं होगा। बारिशों के पेश नज़र LDA ने ईद की छुट्टियों में तामीराती काम बंद करने का फैसला किया है। LDA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर्स को ज़ेरे तामीर मेगा प्रोजेक्ट पर डी वाटरिंग सेट नस्ब करने के हवाले से हिदायत जारी कर दी हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ईद उल अजहा पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात के लिए खसूसी प्लान मुरतब कर लिया गया। LWMC ने हेल्पलाइन मुतारिफ करवा दी है। ईद के 3 रोज़ 15,000 से ज़ायद अमला काम करेगा। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखते हैं। ईद उल अजहा पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात के लिए खसूसी प्लान तैयार कर लिया गया। ईद के 3 रोज 15,000 से जायद अमला काम करेगा। LWMC की जानिब से 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए ऑपरेशनल कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। गाड़ियों की लाइव मॉनिटरिंग और शिकायत का फौरी अजाला होगा। कंट्रोल रूम में हेल्पलाइन 1139, सोशल मीडिया, सफाई ऑपरेशन की मॉनिटरिंग के लिए डेस्क कायम कर दिए गए। शहर में 956 डंपर्स, 615 ट्रॉलियाँ, 238 लोडर्स और 3,499 पिकअप्स सफाई के लिए
लिए काम करेंगी। सूबाई वजीर इत्तलात व बल्दियात आमिर मीर ने कहा है कि निगरान हुकूमत गैर सियासी है, हमारा काम खिदमत करना है। कुर्बानी के बाद कोई कुर्बानी वाला मामला हो तो उसका इल्म नहीं। ये मंसूबा कई माह से तैयार किया जा रहा था और 9 मई को इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई जो नाकाम रही। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि सीरी पाए जलाने पर लाहौर में दफा 144 नाफिज कर दी है। ईद उल अजहा पर बारिश के इम्कानात हैं। सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। 106 के करीब टेम्परेरी कैंप्स इन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं। उस 106 टेम्परेरी कैंप्स के से जो कलेक्शन होगी वो हर यूसी के अंदर 2 पिकअप्स और 1 ट्रॉली के थ्रू उसके अंदर कलेक्शन होगी और वहाँ से फिर ये 5 परमानेंट कैंप्स के अंदर जाएंगे और हम उसके अंदर रिस्पांस टाइम को भी मॉनिटर करेंगे। दूसरी बात ये कि थ्रू कम्युनिटी सेंटर्स, मसाजिद हर तरफ ऐलानात भी करा रहे हैं और हर जगह पे मुख्तलिफ कंटेनर्स रख के तकरीबन बायोडिग्रेडेबल जो इनके बैग्स हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूशन का मरहला उसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। CEO LWMC बाबर साहिबदीन ने कहा कि शहर में 106 आरजी वेस्ट कलेक्शन पॉइंट कायम कर दिए हैं। अलाइशों को तल्फ करने के लिए 5 डंपिंग साइट कायम की गई हैं। 12 लाख से ज्यादा वेस्ट बैग तकसीम किए जा रहे हैं। बैग्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने 281 कैंप्स हर यूसी लेवल के ऊपर बनाए हैं और 30 मॉडल कैंप्स बनाए हैं जो मेजर रोड्स के ऊपर हैं। इन कैंप्स का काम इन बैग्स की डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके साथ साथ लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करना है, पैम्फलेट्स देना और अवेयरनेस मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ईद में LWMC के अमले के साथ काम करें। ईद के तीनों दिन 190 कुर्बान गाहों की खुसूसी वॉशिंग की जाएगी। माहौल दोस्त बैग्स की फराहमी के लिए 30 मॉडल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। कैमरामैन जुनेद के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। पुलिस शहादा की फैमिलीज़ में ईदी की तकसीम। लाहौर पुलिस की अपने शहादा की फैमिली से ईद की खुशियां बांटने की रिवायत बरकरार। ईद उल अज़हा के मौके पर DIG ऑपरेशन नासिर अली रिजवी का शहादाए पुलिस को सलाम। 329 शहादा की फैमिलीज़ में 18,35,000 रुपये ईदी तकसीम की गई। DIG ऑपरेशन की जानिब से शहादा की फैमिलीज़ को गुलदस्ते और तहाइफ भी भिजवाए गए। DIG ऑपरेशन नासिर अली रिजवी का कहना था, हमारे शहादा हमारा फ़ख्र हैं, हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। शहादा के वर्सा हमारी अपनी फैमिली हैं। नासिर अली रिजवी ने डिवीजनल SPs को शहादा की फैमिलीज़ के घर जाने की हिदायत की। शहर की मरकजी शाहराहें मूसलाधार बारिशों के हालिया स्पेल बर्दाश्त ना कर सकी। मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन एक बार फिर शगाफज़दा हो गई। ग्रीन बेल्ट बैठने से 20 फुट चौड़ा और 25 फुट गहरा गड़ा पड़ गया। ख़ियाबान फिरदौसी की एक लेन को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। हालिया मूसलाधार बारिशों के आफ्टर शॉक्स। तेज बारिशों ने शहर के जेरे जमीन बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर की कलई खोल दी। मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन एक बार फिर शगाफ ज़दा हो गई। ग्रीन बेल्ट बैठ जाने से 20 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा गड़ा पड़ गया। गुज़श्ता 4 बरसों में ख़ियाबान फिरदौसी पर सीवरेज लाइन टूटने से 7 मकामात पर शगाफ पड़ चुके हैं। वासा इंतजामिया सीवरेज लाइन तब्दील करने की बजाय हर बार मट्टी डालकर मामला दबा देती है। अगस्त 2020 में ख़ियाबान फिरदौसी पर एक माह में 3 मरतबा शगाफ पड़ने के वाक़यात रोनुमा हो चुके। वासा ने सीवरेज लाइन तब्दील करने का फैसला किया मगर अमल दरामद ना हो सका। शगाफ पड़ने के बाद ख़ियाबान फिरदौसी की एक लेन को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुरम्मत व बहाली का काम मुकम्मल होने तक सड़क ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि शदीद बारिश से मुतल्लिका इदारों के सुस्त इक़दाम ने शहरियों को मुश्किलात से दोचार किया। आइंदा दिनों में मुतवक्के बारिशों से पैदा होने वाली मुमकिन सूरत हाल के लिए मुकम्मल तैयारी की जाए। ईद के दिनों में इंतज़ामिया मुकम्मल अलर्ट रहे। तफसीलात हसन रज़ा की रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास ईद कुर्बान पर मुतवक्के प्री मानसून बारिशों के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म का लाहौर में निकासी आब का मुनासिब और बर वक्त इंतजाम न होने पर बरहमी का इजहार, सैलाबी सूरत हाल पर नाकिस कारकर्दगी की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने नाकिस निकासी आब की सूरत हाल के जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत कर दी। कोताही बरतने वाले मुतल्लिका हुकाम को फिलफौर मुअत्तल करने के अहकामात भी जारी किए। वज़ीर आज़म का कहना था कि शदीद बारिश में मुतल्लिका इदारों के सुस्त इक़दाम ने शहरियों को मुश्किलात से दोचार किया। ईद के दिनों में इंतजामिया मुकम्मल अलर्ट रहे। आइंदा मुतवक्के बारिशों से पैदा होने वाली मुमकिन सूरत हाल के लिए मुकम्मल तैयारी की जाए। वज़ीर आज़म का शहर में जल्द निकासी आब को मुमकिन बनाने के लिए दरकार मशीनरी के हुसूल में दरपेश मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल करने का हुक्म। कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने वालों की सख्त मॉनिटरिंग और आलाइशों के सदेबाब के लिए भरपूर इंतजामात करने को भी कहा गया। ईद और मानसून के
के तनाजुर में शिकायत सेंटर और कंट्रोल रूम को 24 घंटे खुला रखने का हुक्म जारी कर दिया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, कमिश्नर लाहौर और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। खबर शामिल करें। मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए कानून कंवर मोहम्मद दिलशाद का वासा हेड क्वार्टर का दौरा, मानसून बारिशों और वासा लाहौर की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया। मुशीर वज़ीर आला ने MD वासा गुफरान अहमद के हमरा शहर भर का दौरा भी किया। कंवर मोहम्मद दिलशाद ने कज़ाफ़ी स्टेडियम, कलमा चौक अंडरपास और लक्ष्मी चौक का जायजा लिया। डायरेक्टर गुलबर्ग सलमान निसार और डायरेक्टर गंज बख्श टाउन मियाँ हामिद लाल ने ब्रीफिंग दी। मुशीर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि वासा लाहौर बारिशी पानी के निकास का देर पा हल निकाले। डीसल्टिंग ऑपरेशन को जारी रखा जाए ताकि मानसून में बारिशी पानी के बहाव में कोई रुकावट ना बने।